ये अनुज हमारी क्लास में है ना? अनुज ए लिखा हुआ है जहाँ। ओके, देन आई एक्सेप्ट इट एंड नाउ रिक्वेस्ट आया करिश्मा करके क्या? करिश्मा, हाँ करिश्मा अभी तो नहीं आया। करिश्मा करके अभी तो नहीं आया मेरे पास कोई। मैं कहाँ हूँ? सबसे नीचे हूँ। अच्छा ओके, ये है, इसको पिन अप करना है एंड नाउ ये तो ये है। आई शेयर माई स्क्रीन नाउ। स्क्रीन दिखाई दे रही है? अब दिख रही है। सो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? लास्ट टाइम हमने थ्योरम कर ली थी, राइट? इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो थ्योरम हमने की थी ग्रीन्स थ्योरम, एंड ग्रीन्स थ्योरम का हमने पूरा प्रूफ कर लिया था। हाँ, तो ये ग्रीन्स थ्योरम का हमने प्रूफ कर लिया था एंड उसके ऊपर बेस्ड अभी कोई क्वेश्चन नहीं किया था, है ना? So let me once again read the statement of this theorem and then let us take one or two examples, then we will do next thing. Okay, so it states, or it says, that if R is a closed region in the xy plane bounded by a closed curve C, and if m and n are continuous functions of x and y having continuous derivatives in R, okay, then integral C m dx plus n dy, this is equal to integral in surface integral delta n over delta x minus delta m over delta by dx dy. ये इसका स्टेटमेंट था, and where C is traverse in counterclockwise direction. Now let us take few examples. So let me take, or before I go to examples, let me just explain a small thing in between. Okay, now you know the statement of this Green's theorem. So now if you put, now let us put, or let me write this left hand side. लेफ्ट हैंड साइड को मैंने कैसे लिख लिया? लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी बाई। सो मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी रहने दो, सिर्फ एम एक्स इसको करते हैं। रुको, दिस इज, लेट मी राइट, ओहो, एम डी एक्स प्लस एन डी बाई। okay, so m dx plus n dy है, then what you can do, you can write it in write it as a dot product. So मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, m I plus n j लिख सकती हूँ मैं, and dot product of this with dx I plus dy j. Okay, now you can see from here this is a vector. Okay, so ये वेक्टर है, कोई भी इसको नाम दे सकते हैं a, और ये क्या है हमारा dr,
right? This is vector dr. So this one is a dot dr. So integral m dx plus n d by, okay, or this line integral c m dx plus n d by, this is a dot dr. Okay, now look at the right hand side. So right hand side में हमारा delta n over delta x minus delta m over delta by dx dy. So if you write, let us say curl mi plus nj. Okay, so if you write down the curl, then this is equal to delta cross mi plus nj. Okay, and now you can write down this cross product. So I j k del over del x del over del y del over del z, and ये क्या आ गया आपका m n and k का कंपोनेंट यहाँ 0 है. So now if you write down the value of this cross product, then let us write down I. तो I ये क्या आ जाएगा 0 माइनस del n over del z, okay, प्लस j है तो del m over del z माइनस यहाँ पर 0 आ जाएगा, राइट, और क्या आ जाएगा हमारा प्लस k. सो k में हमारे हैं del n over del x माइनस del m over del y. Okay, and now if you take the dot product of this curl mi plus nj, and if you take its dot product with unit vector k, तो ये क्या आ जाएगा only this term, because I dot k dot k is 1. Okay, and these two terms are 0. So therefore this is equal to delta n over delta x minus delta m over delta y. So मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देती हूँ, एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ. ओके, ये m dx प्लस n dy इक्वल टू a डॉट dr, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1. Now if you substitute value of m dx plus n dy from equation number 1 and delta n over delta x minus delta m over delta y, okay, from equation number 2 in your equation, ये इसको भी कुछ नाम दे दो, इसका पहले से क्या चला आ रहा है मुझे पता नहीं, a b शायद दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसको मैं c बोल देती हूँ मान लो. ओके, so if you substitute, so substitute or put value of mx plus m dx plus n dy from equation 1 and the value of this delta n over delta x minus delta m over delta y from equation 2 in equation C. ओके, तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी क्या आ जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, दिस इज a डॉट dr. ओके, एंड राइट हैंड साइड पर हमारा क्या आ जाएगा कर्ल a डॉट प्रोडक्ट ऑफ k. ओके, एंड यहाँ पर ये मैं इसको लगा रही हूँ. ओके, एंड ये यहाँ पर dx dy था, यहाँ पर क्या आ जाएगा dr. ओके, r ली थी ना हमने वो, तो r कर्ल a डॉट k dr. ओके, वेयर dr इज नथिंग बट dx dy हियर, क्योंकि हमारा xy प्लेन में था, सो dx dy है ये dr. ओके, एंड नाउ दिस थ्योरम, ओके, this is known as Green's theorem in vector notation.
ओके, एंड ऑल्सो यू कैन सी फ्रॉम हियर, आपका स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? स्टोक्स थ्योरम का आपका क्या था? स्टोक्स थ्योरम हम कैसे लिखते थे? वी नो दिस स्टोक्स थ्योरम, क्या थी वो? राइट, सो बिल्कुल एग्जैक्टली यही लिखते थे हम. इफ यू रिमेंबर, ए डॉट डी आर दिस थिंग इक्वल टू कर्ल ए डॉट डी एस, राइट? यही थी ना हमारी. सो यू कैन सी फ्रॉम हियर that this Green's theorem is just a special case of Stokes theorem. Okay, so Green's theorem is a special case of Stokes theorem. Now Stokes theorem को स्पेशल केस क्यों होना चाहिए था? इसको 2 डायमेंशन में निकाला, उसको 3 डायमेंशन में पूरा निकाला था, तो वो जनरल चीज होनी चाहिए. तो Green's theorem in a plane is a special case of Stokes theorem. Okay, now let us take some examples. So example number 1, ये ठीक है. ओके, और ऊपर ये तो कल वाला आ गया बच्चे, ये तो कल वाला था. यहाँ तक हमने किया था जो लास्ट टाइम किया था, जो यहाँ पर ये थ्योरम प्रूव की थी, इसको मैंने यहाँ पर इसके स्टेटमेंट को क्योंकि यहाँ यूज करना था इसलिए इसको मैंने इक्वेशन को सी बोल दिया था और कुछ नहीं किया था, एंड उसके बाद मैंने ये आगे किया था. ओके फाइन. ये क्यों बन गया यहाँ? मूव भी नहीं कर रहा है. पेन वाले आइकन पे क्लिक करिए. अच्छा, चलो. वहाँ पे रीडू का आ रहा होगा, सरियंडू का ऑप्शन आ रहा होगा पेन वाले पे क्लिक करिए. पेन वाले पे नहीं, ये क्या हुआ? मैंने कुछ और कर दिया. मिट गया, ये क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ. एनीवे अभी हाल फिलहाल तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा इसमें कहाँ चला गया है. आई कैन स्टार्ट नेक्स्ट थिंग. कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं होगा, लॉस्ट तो नहीं होना चाहिए. कोई नहीं, मैं नेक्स्ट फोल्डर ले लेती हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ. ओके, so let us take this example. Okay, example number 1. So evaluate this line integral y minus sin x dx plus cos x dy, where C is the triangle, shown in figure में अभी बनाती हूँ. okay, A directly
and B by using Green's theorem. ओके, एंड ये आपको दिया हुआ है x axis, y axis, so this one is your x axis, this one is your y axis, एंड यहाँ पर ये आपका ओरिजिन है. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे दिए हुए हैं 0 0 और ओरिजिन इज 0 0 ऑफ कोर्स, एंड दीज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू यू π/2 0 एंड यहाँ पर दिया हुआ है π/2 1. ओके, एंड सो लेट अस लुक एट इट. ओके, तो लेट अस वंस अगेन रीड दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड दिस लाइन इंटीग्रल, वेयर लाइन इंटीग्रल यहाँ पर आपको दिया हुआ है बाई माइनस साइन एक्स dx plus cos x d by, where C is the triangle shown in your figure. Okay, so by using directly and by using Green's theorem. So by using directly का क्या मतलब है, जो हम जैसे नॉर्मल लाइन इंटीग्रल निकालते थे वैसे हमको नॉर्मल लाइन इंटीग्रल निकालना है. ओके, सो बाय यूजिंग डायरेक्टली मीन्स हमको लाइन इंटीग्रल निकालना है. डायरेक्टली जैसे हम निकालते थे तो हम कैसे निकालते थे, वी डू इट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते थे. अब यहाँ पर ये लाइन दी हुई है आपको, तो ये जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है इसकी इक्वेशन कैसे हम निकाल लेंगे. यहाँ पर इक्वेशन वी नो कि स्ट्रेट लाइन की हमारी इक्वेशन क्या होती है, बाई इक्वल टू एम एक्स. ओके, सो बाई इक्वल टू एम एक्स जो हमें दी है. ओके, सो हम क्या करेंगे, इसका एम कैलकुलेट कर लेंगे. एम कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाई 2 माइनस बाई 1 बाई x2 माइनस x1. सो कैलकुलेट कर लो क्या आ जाएगा. ये क्या है यहाँ पर, बाई 2 माइनस बाई 1 मीन्स 1 माइनस 0 और यहाँ पर क्या हो गया x2 माइनस x1. सो x2 हमारा क्या दिया हुआ है, π/2 माइनस 0. ओके, सो ये हमारा आ गया 2/π. सो दिस मीन्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारी क्या आ गई, 2/πx. सो बाई इक्वल टू, ये इसकी इक्वेशन आ गई हमारी 2/πx. ओके, यहाँ से तो ये हो गया. अब हमें फाइंड आउट करना है लाइन इंटीग्रल. सो अलोंग, इसके नाम भी दे सकते हैं हम, तो ओ ए एंड बी कर लो. ओके, सो हमें लाइन इंटीग्रल अलोंग सॉरी अलोंग ओ ए, अलोंग ए बी एंड अलोंग बी ओ. ओके, सो फाइंड आउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन इंटीग्रल अलोंग क्या है, ये ओ ए. सो ओ ए के अलोंग क्या है, ओके, एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to π/2, एक्स इज π/2. ओके, सो एक्स अगर π/2 है हमारा यहाँ पर, तो dx इज ऑफ कोर्स 0. सो dx इज 0. ओके, नाउ लेट अस डू इट. सो ये क्या है हमारा इंटीग्रल c बाई माइनस साइन एक्स था ना, बाई माइनस साइन एक्स, तो वो क्या आ जाएगा वहाँ से, x इक्वल टू π/2 रखा तो dx इक्वल टू 0 आ गया. सो ये फर्स्ट टर्म तो पूरी 0 ही हो गई. सेकेंड टर्म में हमारा क्या आ गया, cos. ओके, सो cos π/2 एंड डी बाई. सो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख दूँ कि इंटीग्रल लिखूँ पूरा, चलो एक बार लिख ही देती हूँ. बाई माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी बाई दिस थिंग इक्वल टू, ओके, ये क्या आ गया, इंटीग्रल सी, एंड यहाँ पर ये हमारा इससे आ जाएगा कॉस π/2. ओके, और ये डी बाई आ गया. चल क्यों नहीं रहा, चल रहा है. ओके, एंड cos π/2 यहाँ पर 0 हो जाएगा. सो ये 0 हो गया, राइट.
Similarly, find out along सॉरी, ये लिमिट मैंने रखी ही नहीं है। ये तो cos पाई बाई 2, अच्छा ये इसमें तो 0 ही आ जाएगा। अरे इंटीग्रेट करेंगे, आई एम सॉरी मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है, इंटीग्रेट तो नहीं किया मैंने। मैं सोच रही हूँ ये करेक्ट क्यों नहीं आ रहा। हाँ, तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो माइनस साइन पाई बाई 2 एंड नाउ सब्स्टिट्यूट। ओके, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू रख दो एंड लिमिट्स यहाँ पर क्या आ जाएंगी, एक्स की लिमिट्स क्या आ जाएंगी, 0 से पाई बाई 2। ओके, सो ये बाय नाउ यू कैन डू दिस प्रैक्टिक दिस इंटीग्रल्स। हाँ वेरी वेल, हाँ बोलो बोलो। कहाँ है ओ ए के लॉन्ग? हाँ बाई 0 है। आई एम सॉरी, मैं कर क्या रही हूँ, आई एम सॉरी, पूरा गलत है मैं बोल रही हूँ ना आज, आई एम सॉरी, पता नहीं क्या गलत बोले जा रही हूँ। चलो, यू आर राइट, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। ओके, सो यहाँ पर ऑफ कोर्स बाई 0 है, सो बाई 0 है तो हमारा डी बाई 0 एंड देन ये जो आएगा x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, राइट। सो अब हमारा लिख सकते हैं हम, वो गलत था। सो ये क्या आ गया मेरा, बाई 0, सो डी बाई 0। ओके, सो ये क्या आ गया आपका, और माइनस साइन एक्स डी एक्स, राइट। एंड ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। ओके, नाउ आई एम करेक्ट। नाउ दिस इज माइनस माइनस कॉस एक्स, सब्सिट्यूट कर दो, वैल्यू क्या आ गई, ओके कैसे आ जाएगी 0, कॉस 0 पर 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0 आएगा कि नहीं, एंड कॉस 0 पर 1 होता है, सो माइनस 1 होगा। ओके, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, सो ये माइनस 1 हो जाएगा। ओके, now second thing is along AB, similarly calculate along AB. Okay, now along AB क्या हो रहा है, x is changing from pi by 2 to pi by 2, so x is pi by 2, so dx is 0. Okay, and by is changing from 0 to 1, so now substitute, this is along AB. Okay, and ये क्या है हमारा, by minus sin x dx plus cos x dy. Okay, now substitute value, तो dx 0 है तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, this is 0 and now this thing equal to cos x की वैल्यू है पाई बाई 2 एंड dy क्या आ जाएगा हमारा, dy की लिमिट्स क्या आ जाएंगी, dy की लिमिट्स क्या आएंगी, बाई की लिमिट्स क्या आएंगी, 0 to 1. Okay, and then calculated cos pi by 2 is 0, so this whole thing is 0. अब क्या बचा हमारा, along BO, right, so along BO क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, so बाई हमें पता है, बाई इक्वल टू 2 बाई पाई एक्स। ओके, सो बाई इज 2 बाई पाई एक्स। ओके, सो यहाँ से हम डी वाई निकाल सकते हैं, डी वाई इक्वल टू 2 बाई पाई डी एक्स and now substitute these values. Okay, so if you substitute these values along BO, this is by minus sin x dx plus cos x dy. okay, तो ये वैल्यू सबकी रख दो, तो ये क्या आ जाएगी, और दिस थिंग इक्वल टू, बाई क्या था 2 बाई पाई के एक्स, और क्या था हमारा 2 बाई पाई एक्स, और यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और क्या आ जाएगा डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी
dx को हमें dx ही रखना है, एंड प्लस cos x और dy की वैल्यू क्या है हमारी 2 पाई dx। ठीक किया है कि नहीं? y की वैल्यू रख दी, ठीक है, एंड dx एज इट इज आ जाएगा, एंड ये आ गई। ओके, नाउ जस्ट इंटीग्रेट इट लाइक एनी अदर इंटीग्रेशन। ओके, एंड इंटीग्रेट इट, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या आई वैल्यू, किसी ने वैल्यू उसकी कैलकुलेट करके देखी? सो दिस इज 2 पाई, एंड ये क्या है हमारी एक्स स्क्वायर बाई 2, और x की लिमिट्स क्या आ जाएंगी यहाँ पर, x की लिमिट्स क्या आएंगी, x की लिमिट्स क्या है हमारी पाई बाई 2 से 0। सो पाई बाई 2 से 0 हमारी लिमिट्स आ जाएंगी, पाई बाई 2 से 0। ओके, एंड अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो सॉल्व कर दो इसको, जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो दिस इज माइनस माइनस कॉस एक्स, एंड यहाँ पर लिमिट रख दो 0 टू नहीं पाई बाई 2 टू 0, एंड सिमिलरली यहाँ पर कर दो, सो प्लस 2 पाई एंड कॉस एक्स का साइन एक्स, एंड फिर इसकी भी वैल्यू रख दो पाई बाई 2 0। सो सब्स्टिट्यूट दीज लिमिट्स, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दीज लिमिट्स, ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस पाई बाई 4 माइनस 2 पाई। ओके, so now add all these three, so adding, इसको कुछ बोल दो, 3 2 एंड इसको 1। so add equation 1 2 3, so adding 1 2 and 3 क्या आ जाएगा, ये दिस थिंग इक्वल टू, पहला क्या आया था हमारा -1, एंड इससे ये आ जाता है, सो +1, ओके, माइनस पाई बाई 4 माइनस 2 पाई। सो ये कट गया, ये आपका बच गया। ओके फाइन, तो ये तो इससे आ गया हमारा, ये हमारा आया डायरेक्ट वाले से। ओके, अब दूसरी चीज़ है हमारी, हमें ग्रीन्स थ्योरम से निकालना है। सो नाउ सेकेंड पार्ट, ओके, इसको ये वाला सेकेंड पार्ट, तो हमें बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, सो बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम भी निकाल दो, क्या आया बताओ। सो बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, तो ग्रीन्स थ्योरम भी नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या थी हमारी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। सो इसका मतलब क्या हुआ, m क्या हुआ यहाँ पर, m क्या हुआ, m dx प्लस n dy। सो m इज बाई माइनस साइन एक्स, एंड n क्या हुआ cos x। ओके, सो आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल m and n, so m and n are, so we have m is by minus sin x, एंड n हमारा क्या था, n था cos x, राइट। सो m इज cos x। ओके, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा m ओवर डेल्टा बाई एंड डेल्टा n ओवर डेल्टा x। सो डेल्टा m ओवर डेल्टा बाई भी निकाल लो, डेल्टा m ओवर डेल्टा बाई क्या आ जाएगा यहाँ पर सिर्फ एक ही है, सो 1। ओके, एंड डेल्टा n ओवर डेल्टा x भी निकाल लो, सो ये आ गया माइनस साइन एक्स। ओके, now you know m and n, you know delta m over delta y, delta n over delta x. Now substitute it in Green's theorem. Okay, so Green's theorem is integral c m dx plus n dy, okay, this thing equal to surface integral delta n over delta x, delta n over delta x minus delta m over डेल्टा बाई dx dy, यही है ना। सो अब इसकी वैल्यू रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा n ओवर डेल्टा x, हमारा क्या आया था माइनस साइन x, और ये आया है -1।
ओके, सो ये हमने वैल्यू रख दी डी एक्स डी वाई। एंड अगर आपने सरफेस इंटीग्रल किए हैं देन दिस इंटीग्रल इज वेरी इजी, सो टेक लिमिट्स। तो ये क्या आ जाएंगी लिमिट्स बताओ? ओके, लिमिट्स क्या आएंगी हमारी? हमें एक्स और बाई की अब लिमिट्स रखनी है। सो बाई की लिमिट यहाँ पर क्या आ जाएगी कि हम दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि तो चाहे जिस तरीके से रख लो, पहले एक्स की लिमिट रख लो या पहले बाई की लिमिट रख लो, इट इज़ अप टू यू, यू कैन चेंज, ऑलवेज यू कैन चेंज लिमिट्स। ओके, सो अगर मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है एक्स एंड बाई, तो मैं पहले बाई की रखती हूँ। तो अगर पहले बाई की रखी तो क्या आ गई? 0 से बाई की लिमिट ली तो इस तरह की स्ट्रिप लोगे कि नहीं? Oh yes, ma'am. तो 0 से क्या आ जाएगी? Minus 2 2x बाई पाई। वेरी गुड। सो बाई की लिमिट्स आएंगी 0 से 2 बाई पाई एक्स, ठीक है। एंड x की लिमिट क्या आ जाएगी? x की लिमिट क्या आएगी? अब इस स्ट्रिप को कहां से कहां तक मूव कर रहे हो? 0 से पाई बाई 2 तक। सो इट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। okay, and once you have done this then no problem, you can do it easily। so अब करते जाओ। तो ये तो सारी x की टर्म है और कांस्टेंट है, तो माइनस साइन एक्स और यहाँ पर बाई और आ जाएगा। ओके, माइनस साइन एक्स तो एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पर बाई और आ जाएगा, डी बाई पर कर रहे हो ना आप, तो बाई और माइनस ये 1 ही है तो यहाँ पर बाई ही आएगा। ओके, सो माइनस साइन एक्स माइनस बाई साइन एक्स माइनस बाई, और अब इसकी लिमिट लगा दो। मैं यहाँ पर इसे हटाकर यहीं पे कर दूँ, अच्छा चलो नीचे कर देती हूँ इसको, यहाँ पर इसको मिटा देती हूँ तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, ओके, ये तो ऊपर वाली चीज़ है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो दिस इज x इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 एंड बाई पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो दिस इज माइनस बाई साइन एक्स माइनस बाई, एंड अब इसकी लिमिट लगा दी हमने। तो लिमिट क्या थी हमारी? 0 टू 2x बाई पाई। सो लिमिट लगा दो, क्या आया ये आपका? दिस इज इक्वल टू, जस्ट सॉल्व इट। ओके, सो बाई की वैल्यू रखते जाओ, माइनस 2x बाई पाई साइन एक्स माइनस 2x बाई पाई। ओके, एंड dx, एंड अब इसको फिर से x के ऊपर इंटीग्रेट कर दो, x इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। सो x के ऊपर इंटीग्रेट कर दो अब इसे, ठीक। बट यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको? यहाँ पर x साइन x है, सो दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ओके, सो दिस इज x इक्वल टू, यहाँ पर आ गया माइनस 2 बाई पाई, तो कॉन्स्टेंट है। now it's a product of two function x and sin x। okay, so do it first function into integration of second, first function into integration of second, minus integral of differential coefficient of first। so x को मैंने first माना है, so this is minus cos x dx, right? ये आ गया, एंड दूसरे वाले से क्या आया, और यहाँ पर तुम वैल्यू रखते जाओ। ये दिस इज क्या थी वो, 0 टू पाई बाई 2, सिमिलरली माइनस 2 बाई पाई, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड यहाँ पर भी आप वैल्यू रख दोगे इसकी। ओके, 0 टू पाई बाई 2। सो बताओ क्या आ गया? सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? Good. Okay, so you can see from here that this line integral you have find the value of line integral directly and by using Green's theorem. And now I would like to do one more question.
वन मोर एग्जाम्पल, लेट अस डू इट। वैसे तो ये बुक में दिया हुआ है, आपके बुक में तो सारे ही दिए होते हैं मोस्टली, बट फिर भी वेरीफाई Green's theorem in the plane for line integral this which is given to you xy plus y square dx plus x square dy where C is a closed curve, where C is a closed curve of the region bounded by y equal to x and y equal to x square. Okay, so verify Green's theorem in the plane for this line integral where C is a closed curve of the region bounded by these two curve. So हमें दो कर्व दिए हुए हैं, y equal to x के and y equal to x square. तो हमें किस तरह का कर्व दिए हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन दी हुई है और एक पैराबोलिक कर्व दिया हुआ है, राइट? ओके, सो हमें एक ये इक्वेशन दी है एंड दूसरी हमें ये इक्वेशन दी है। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है कि दोनों कर्व कहाँ मिल रहे हैं। ओके, सो दैट यू गेट ए क्लोज्ड कर्व। दोनों अलग अलग कर्व दिए हुए हैं तो हमको इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। सो लेट अस डू इट। तो हमें दिया हुआ है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू x दिया है। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो ये आ जाएगा y equal to y square. Okay, or this means y square minus y equal to 0, or this implies y minus 1 equal to 0. So this means हमें मिल गया y equal to 0 and y equal to 1. And if y equal to 0 then y equal to x equation है, from equation 1 से हमारा क्या आ जाएगा, x equal to 0 and y equal to 1 से x is 1. ओके, सो हमें दो पॉइंट मिल गए ये। ओके, एट x इक्वल टू 0 y इज 0, सो x 0 0 एंड 1 1। ये कर्व कहाँ कट कर रहा है, ये दोनों, ये किस तरह का कर्व हो जाएगा, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। सो ये इस तरह का कर्व होगा, 0 0। ये एक तो आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी y इक्वल टू x, एंड ये क्या है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू आ रही हैं, राइट? तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस टाइप का ये कर्व हो जाएगा। ओके, सो हमें किसका एरिया चाहिए, ये वाला। ओके,
राइट, बिकॉज इट्स अ क्लोज्ड कर्व, यू कैन सी फ्रॉम हियर कि ये क्लोज्ड कर्व है. ओके, अब हमें ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करनी है. दिस मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट लाइन इंटीग्रल एंड लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल. तो हम क्या करेंगे कि हम लाइन इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे लाइन इंटीग्रल एंड ये लाइन इंटीग्रल हम करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से, राइट. एंड सरफेस इंटीग्रल हमें इस सरफेस के लिए चाहिए. सो इसको ये 0 0 पर था और ये 1 1 पॉइंट है आपका. फिगर क्लियर हो गया? ओके. So these curve y equal to x and y equal to x square intersect at point 0 0 and at point 1 1. Okay, and the positive direction is traversing C is I have shown. Okay, now calculate line integral. Okay, so along y equal to x square and then along y equal to x. So first let us calculate line integral. So line integral along this curve y equal to x square. Okay, अब हमें क्या दिया हुआ है, मैं नीचे लिख देती हूँ, वहाँ इट्स नॉट गुड, फिर पूरी चीज़ नहीं आएगी. Now line integral along y equal to x square. Okay, so along y equal to x square है तो यहाँ पर dy क्या आ जाएगा, dy equal to 2x dx. Okay, so your integral is okay x y, तो x की y की जगह मैं ये x स्क्वायर रख देती हूँ, x स्क्वायर और क्या है प्लस y स्क्वायर. सो ये x टू द पावर 4 dx और क्या है हमारा प्लस x स्क्वायर. सो x स्क्वायर एंड dy क्या था हमारा 2x dx, राइट, ये dy था हमारा. ओके, सो इससे एंड x की लिमिट्स क्या आ जाएगी हमारी, x की लिमिट यहाँ पर क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0 to 1. Okay, and now it has become simple integral, so just calculate it. तो ये क्या आ गया आपका, ये 0 to 1 3x cube plus x to the power 4 dx, and now calculate it. So this is 3x to the power 4 by 4 plus x to the power 5 by 5, and now substitute limits 0 to 1. So this is 3 by 4 plus 1 by 5, so this is 19 by 20. ठीक है. Now similarly calculate along y equal to x. So along y equal to x now. Now along y equal to x similar manner में calculate कर लो. So y equal to x है तब तो यहाँ कोई problem नहीं है, dy equal to dx. Okay, तो चाहे y की लिमिट रख दो चाहे x की लिमिट रख दो, इट इज़ अप टू यू, जैसे आप करना चाहो. ओके, नाउ दिस थिंग इक्वल टू, अब y यहाँ पर क्या है x फिर x y है ना, तो x प्लस एक्स एंड यहाँ पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर एंड ये आ गया dx और प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dy हमारा dx ही है, सो dx आ गया आपका, नो प्रॉब्लम. सो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, एंड लिमिट्स क्या आ जाएंगी अब x की यहाँ पर 1 to 0. ओके, सो 1 से 0, and once you have written this, now it's no problem. So 1 to 0, just simplify it. So this one is 3x square dx, so x cube by 3, so therefore this is equal to x cube
and now substitute limits. So this is equal to -1. Okay, so therefore required line integral क्या आ गया? Therefore the required line integral इसका कुछ नाम दे सकते हो, तब फिर रिक्वायर्ड की जगह नाम दे सकते हो, ओ ए, यहाँ पर कुछ भी दे दो, यहाँ पे मैं सपोज दे देती हूँ ए बी सी, तो ओ ए बी सी ओ, ओके, इस तरह से लिख सकते हो। ओके, लाइन इंटीग्रल क्या आ गया? ये रिक्वायर्ड की जगह हम लिख सकते हैं ओ ए बी सी ओ, तभी तो ये क्लोज कर्व हुआ। ओके, तो ये क्या आ गया? वो क्या आया था हमारा? 19/20 -1, सो दिस इज इक्वल टू -1/20 आ गया आपका। अब ये तो आ गया आपका लाइन इंटीग्रल की वैल्यू। नाउ फाइंड आउट सरफेस इंटीग्रल। ओके, तो सरफेस इंटीग्रल हमारा क्या है? नाउ सरफेस इंटीग्रल डेल्टा एन ओवर डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एम ओवर डेल्टा बाई। सो आपको डेल्टा एन ओवर डेल्टा एक्स में एन पता है, एम भी पता है, सो यू कैन फाइंड आउट डेल्टा एन ओवर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एम ओवर डेल्टा बाई। एन क्या है यहाँ पर? दिस इज डेल्टा एन ओवर डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एम ओवर डेल्टा बाई डी एक्स डी बाई। आपको ये पता है सारी चीजें, यू कैन राइट डाउन, राइट? सो लिख दो, दिस इज डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स, एन क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर एम डी एक्स प्लस एन डी बाई माइनस डेल ओवर डेल बाई, और एम क्या है आपका? एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो ये आपका आ गया डी एक्स डी बाई। सो फ्रॉम हियर you get this thing equal to, ये partial differentiation है, and this is equal to, ये क्या आ गया? x minus 2 by, सॉल्व करके okay, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया तो x minus 2 by dx dy आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें लेनी है लिमिट मेन पार्ट, सो लिमिट्स ले लो। ओके, तो जैसे पहले हमने एक्स वाई की करके की थी, सिमिलर मैनर में यहाँ पर आ जाएंगी। तो इट इज़ अप टू यू कि पहले बाई की लेनी है कि एक्स की लेनी है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसे लेना चाहो। ओके, सो मैंने वहाँ बाई लिखा है पहले, तो मैं बाई की पहले लिखती हूँ। तो बाई की क्या आ जाएंगी यहाँ पर लिमिट? एक्स स्क्वायर से एक्स। सो बाई की लिमिट आएगी, क्योंकि तुम ये वाली स्ट्रिप यहाँ ऐसे चला रहे हो ना, सो बाई की लिमिट्स आ जाएंगी बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू बाई इक्वल टू एक्स, और एक्स की लिमिट क्या आ जाएंगी? 0 से 1। सो अगर ये करेक्टली लेना आ गया देन इट्स फाइन, फिर तो कुछ है ही नहीं, सॉल्व कर लो इसको। क्या आया बताओ? कितने लोगों ने निकाल दिया? यस लिखें चैट बॉक्स में प्लीज। Good. Good. So I assume that you all can do it, because by now we have done lot of surface integrals. Okay, so 2 integrals, 3 integrals हमने बहुत सारे solve किए हैं. You can do it. Okay. Now this कितना बज रहा है अभी इस समय? And I 2:41 हो रहा है. So today I want to start with now curvilinear coordinate system. ये मैं यहाँ पर ही finish करती हूँ. So ये आपका यहाँ पर finish हो गया, means ये वेक्टर वाला पार्ट मेरी तरफ से पूरा हो गया। Okay, now I come to the curvilinear coordinate system,
and if you like I can start it next time or I can start it today. तो पहले सबसे पहले लेकिन आज छोटी छोटी चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको, नेक्स्ट टाइम से हम उसको स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली. ओके, सो आई स्टॉप, आई कैन स्टॉप दिस, आई कैन पिन अप मी, यू कैन पिन अप. नेक्स्ट टाइम करना है. कैन यू सी मी? Yes, ma'am. ओके, सो ये मेरी साइड से पूरा हो गया. एंड नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो उसको सिर्फ कहानी की तरह थोड़ा सा सुनना है, वो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो एक बार में ज़रूरी नहीं है कि समझ में आने वाला है आपको. ओके, सो नो प्रॉब्लम. 5 मिनट बस सुनना है, मैं बंद कर दूँगी इसके बाद. ठीक है, तो देखो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको पता है ना. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोगों ने काफ़ी सारा काम किया है. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हर एक को पता है. तो 12th तक हम क्या करते थे, हम एक्स एंड वाई लेते थे. इफ़ यू रिमेंबर कि हम सिर्फ लेते थे, मोस्टली हम जो कैलकुलेशन करते थे, हम ग्राफ बनाते थे, तो हम क्या करते थे, एक एक्स एक्सिस ले लेते थे और एक वाई एक्सिस ले लेते थे. यही करते थे ना. उसको ऐसे बना लो या ऐसे बनाओ, लेकिन 2 ही एक्सिस होती थी, राइट. सो उसकी आपको पेपर में बनाना है तो ऑब्वियसली ऐसे बनानी पड़ेंगी. तो 2 आपकी इस तरह से होती थी. और जहाँ ये मीटिंग पॉइंट है वो क्या होता था, आपका ओरिजिन होता था. सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जहाँ पर ये मिल रही है 2 लाइन है, वहाँ पर ये इंटरसेक्शन पर आपका पॉइंट होता है. तो कोई भी पॉइंट आप यहाँ कंसीडर कर रहे हो जिसके कोऑर्डिनेट आप लिखते हो एक्स बाई, तो वहाँ क्या होता है, टू ईच पॉइंट के देयर पास 2 लाइन्स. के 2 लाइन का ही तो इंटरसेक्शन होता है, तभी तो वो एक पॉइंट बनता है, राइट. नाउ अगर 2 की जगह मैं सपोज 3 ले लेती हूँ इस तरह से. अब हमारे को 3 डायमेंशन में है हर चीज. ओके, दिख रही है आपको, दिख रही है. तो ये मैं रेड को सपोज एक्स बोल रही हूँ, इसको यहाँ ग्रीन को मैंने बाई बोला, इसको जो पिंकिश है इसको मैंने जेड बोला, राइट. तो ये आपकी यहाँ आपका क्या है, एक प्लेन है, ये आपका एक प्लेन है ना एक्स बाई, और ये प्लेन कौन सा है, एक्स जेड, और ये प्लेन कौन सा है आपका, बाई जेड. और ये जो तीनों हैं इनके बीच में एंगल हमेशा हर एक, ये दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो परपेंडिकुलर को ही ऑर्थोनॉर्मल बोलते हैं. सो दिस मीन्स इन सबके बीच में आपस में 90 का एंगल है. मीन्स एक्स और जेड के बीच में भी 90 का है, एक्स और बाई के बीच में भी 90 का है, बाई और जेड के बीच में भी 90 का है. ओके, सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और ये जो आपका प्लेन है एक्स और बाई का है, तो ये कौन सा प्लेन हुआ आपका, एक्स बाई प्लेन. ओके, एंड ये तीनों प्लेन जहां ये मिल रहे हैं वो पॉइंट आपका कौन सा होता है, ओरिजिन होता है. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि ओरिजिन जहां पर ये मान रहे हो आप कि यहां से भी 3 प्लेन पास हो रहे हैं ना, 3 प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो. तो सिमिलरली अगर कोई भी और भी अगर पॉइंट ले रहे हो, कोई भी पॉइंट ले रहे हो यहाँ पर, तो दिस विल बी ए इंटरसेक्शन ऑफ 3 प्लेन्स. ओके, 3 डायमेंशन में क्या होगा, इट शुड बी ए इंटरसेक्शन ऑफ 3 प्लेन्स. ओके, अब अगर देखो जब एक्स बाई तुम्हारा यहाँ पर है, ये जो एक्स बाई है, इसका सिंपल एग्जांपल है, अगर तुम्हारा कोई भी रूम है एंड रूम का छत हटा दो, रूम का एक कोना देखो, तो कोना देख रहे हो अगर, तो क्या होगा, एक नीचे सरफेस है, सपोज वो एक्स बाई है. ओके, तो उसमें से एक एक्सिस, एक उसका जो लाइन बनी दोनों के मीटिंग पॉइंट, उसको एक को एक्स बोल दिया, एक को बाई, और ऊपर वाले को जेड. ओके, तो नीचे वाली एक्स वाई हो गई, और जो साइड की है एक एक्स जेड होगी और एक बाई जेड होगी, राइट. अब तो ईच जो भी कोई पॉइंट है यहाँ पर, वहां से क्या हो रहा है, 3 प्लेन पास हो रहे हैं. अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये एक्स बाई है तो ये एक्स बाई प्लेन है एट जेड इक्वल टू 0.
अब मैंने z इक्वल टू 1 कर दिया सपोज, तो क्या हुआ, यहाँ पे अगेन यू हैव x बाई प्लेन थोड़ा सा ऊपर उठ गया, राइट। आप z इक्वल टू 2 ले लो, तो अगेन यू हैव x बाई प्लेन एट z इक्वल टू 2, सो एट z इक्वल टू 0 you have this plane, then at z equal to 1 you have again this is same plane, थोड़ा सा ऊपर उठ गया, ओके। सो अगर दिस मीन्स क्या हुआ कि z इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इफ आई से z इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस मीन्स दिस इज ए एक्स वाई प्लेन। समझ में आया पॉइंट? सो z इक्वल टू अगर मैं कॉन्स्टेंट बोल रही हूँ तो एक्स वाई प्लेन है ऑलवेज। सिमिलरली अगर मैं सपोज y इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लूँ तो क्या होगा, तो y इक्वल टू 0 पे ये प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, अब y इक्वल टू 1 पे है तो यही एक्स जेड प्लेन यहाँ पे मूव कर गया, फिर y इक्वल टू 2 ले लिया तो और प्लेन आगे मूव कर गया। तो सिमिलरली y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, सो देन दिस इज एक्स जेड प्लेन। सिमिलरली इफ x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, y जेड प्लेन। ओके, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि जब ये जो सरफेसेस हैं ये जो होती हैं वो हमारी प्लेन सरफेसेस होती हैं, ओके। तो प्लेन सरफेस का क्या मतलब है, मेरे पास कोई कॉपी है तो मैं ये जो है प्लेन सरफेस का क्या मतलब है कि ये है ये इस तरह का, ये आपके पास बुक होगी, एक वेक्टर की ये बुक है ना, तो ये प्लेन सरफेस इस तरह की है, तो तीनों प्लेन सरफेस होती है ना, और जब ये प्लेन सरफेस मिलती हैं, कोई भी दो प्लेन सरफेस मिलती हैं तो क्या बनता है आपका, यहाँ पर अगर दो प्लेन सरफेसेस ये मिल रही हैं तो क्या बना ये बीच में लाइन। तो ये लाइन कैसी बनेगी आपकी, स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, स्ट्रेट लाइन। सो व्हेन दीज थ्री प्लेन्स दे मीट तो ये स्ट्रेट लाइन बनती हैं। यहाँ पे जो यहाँ पर दो प्लेन मीट कर रहे हैं तब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। सिमिलरली ये, और जो स्ट्रेट लाइन जो बन रही है उन्हीं को ही तो आप एक्सिस बोलते हो, उनको ही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बोलते हो, राइट। पता चल रहा है पॉइंट में क्या बताना चाह रही हूँ? अब आते हैं पॉइंट पर। अब सपोज ये जो आपकी प्लेन है उसकी जगह आपकी ये टेढ़ी मेढ़ी इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी हो, अगर कुछ भी हो तो कोई भी टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है, ओके। इन जनरल क्या होता है कि अगर इन रियल लाइफ में या कहीं पर भी आप जब भी देखते हो तो आपको सारे टाइम प्लेन सरफेसेस तो दिखती नहीं है। तो कैलकुलेशन के लिए भी अगर आप फॉर एग्जांपल ग्रेविटी थ्योरीज कंसिडर कर रहे हो तो आप प्लेन सरफेसेस कैसे ले सकते हो, वहाँ पर प्लेन सरफेसेस तो नहीं होती हैं, तो वहाँ कर्व सरफेसेस कंसिडर करते हैं। तो कर्व सरफेसेस हैं अगर, ओके, कर्व मीन्स उल्टी सीधी है मान सपोज, तो जब तीन उल्टी सीधी सरफेसेस मिल रही हैं तो क्या होगा, तीन कर्व बनेंगे, है ना। वो किसी भी शेप के हो सकते हैं, यू डोंट नो, बट वो तीन कर्व बनेंगे आपके। जैसे इसमें तीन स्ट्रेट लाइन बनती हैं जिन्हें एक्स वाई जेड बोलते हैं, इसी तरह से उसमें तीन कर्व बनेंगे। तो वो जो कर्व बनेंगे उनको ही हम उनको नाम दे देते हैं इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इस बुक में जैसे हमारा दिया हुआ है तो उसको बोला हुआ है U1 कर्व, U2 कर्व, U3 कर्व, और उसको सिंबॉलिकली हम दिखा देते हैं। एग्जैक्टली क्या कर्व बन रहा है ये तो हमें नहीं पता, अभी हम तो जनरल चीजें कंसीडर कर रहे हैं, तो हम उसको सिंबॉलिकली हम ऐसे तीन कर्व सरफेसेस दिखा देते हैं उसको, ओके। अब ये कर्व सरफेसेस हैं, तो अब क्या करें, तो अब इनकी रेफरेंस फ्रेम तो हमें कोई भी लेना पड़ेगा, तभी तो तुम कोई भी चीज़ अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो कोई ना कोई रेफरेंस फ्रेम लेना पड़ता है। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, जैसे कि एक्स बाई जेड तुम लेते हो तो वो रेफरेंस फ्रेम ही तो है कि आपने यहाँ पर या एक्स वाई सिर्फ कंसीडर कर रहे हो तो एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, इसे ही रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। तीन में सिर्फ तो एक्स वाई जेड है तो ये रेफरेंस फ्रेम है। तो इसी तरह से इसमें क्या होता है U1, U2, U3। और मैं मेन पॉइंट क्या बताना चाह रही थी वो भूली हुई। हाँ, तो अब ये जो सरफेसेस हैं आपकी तीन सरफेसेस हैं, तो अब इसको क्या करें, हम रेफरेंस फ्रेम कैसे लें। तो हम क्या करते हैं कि ये जो कर्व सरफेसेस हैं उस पर कोई भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं। तो हमने सपोज U1
सरफेस पे एक पॉइंट लिया, ओके, उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। सिमिलरली कोई पॉइंट हमने U2 पे ले लिया, U2 सरफेस पे ले लिया, उस पर भी हमने उस पर भी हमने टेंजेंट ड्रॉ की। तो तीनों सरफेसेस पे एक एक पॉइंट ले लिया आपने, अब फिर टेंजेंट ड्रॉ करी तीनों पर, ओके। अब इफ these tangents they meet at right angles to each other, okay, अगर ये टेंजेंट राइट एंगल पर मिलती हैं, then this is known as orthogonal curvilinear coordinate system, okay। अगर ये राइट एंगल पे नहीं मिलती, then this is not a curvilinear coordinate system, it can be some other coordinate system, okay। अच्छा, एक और बात है, एक तो सरफेस पर पॉइंट लेके आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, दूसरा एक और चीज कर सकते हो, वो क्या ले सकते हो, नॉर्मल टू द सरफेस, राइट। सो इफ यू टेक 3 पॉइंट्स ऑन ईच सरफेस, मीन्स ऑन U1 surface you take 1 point and you draw normal to this surface, okay, at that point. Similarly you do for the next surface, similarly you do for the third surface, and also if these normals, if they meet at right angles to each other, then also it is a orthogonal curvilinear coordinate system. And in orthogonal curvilinear coordinate system, these two they are identical, means अगर आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करें इसके, तो ये दोनों के सेम आते हैं, ओके। सो ये जो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज द सिंपलेस्ट सिस्टम to understand things, okay, and in our course we have only orthogonal curvilinear coordinate system, which is the simplest system, and then you can derive all these things like curl, divergence, curl, grade, etc in orthogonal curvilinear coordinate system, and from these systems you can go to your like Cartesian coordinate system or cylindrical coordinate system or spherical coordinate system, okay, these are some all special cases of curvilinear coordinate system, or you can say orthogonal curvilinear coordinate system, okay। so आज अगर इतना समझ में आ गया हो तो then I would be happy, otherwise next time I will explain it once again, फिर उसके बाद स्टार्ट करूंगी, क्योंकि इसमें ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में शुरू का पार्ट ही आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो फिर डेरिवेशन वगैरह तो कुछ खास है नहीं, वो तो फटाफट हो जाएंगे, लेकिन आपको पहला पार्ट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, ओके। सो आई होप कि कुछ तो समझ आया होगा आज भी। आ जाता है, अच्छा, हाँ, अच्छा। और मुझे तो स्टूडेंट्स ने उल्टा बताया था, वो कहते हैं मैडम यही नहीं पता चल रहा कि ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, ओके। तो अगर आपको समझ में आ जाता है देन आई एम वेरी हैप्पी, ओके। सो गुड, सो लेट अस स्टॉप हियर। सो यस, कल से हो रही लगातार बहुत हो रही है।